There are over 3,000 bill payment options available through our app. जितनी transactions होती हैं overall बैंक के अंदर, उन transactions का 94% of those transactions happen digitally, and only 6% of these transactions happen at the branch counters. Transactions digitally हो रही हैं, वो 97% transactions are happening digitally, and only 3% of these transfers are happening through the branch counters. Mizan, of course, has been growing very, very rapidly on the digital conversion side. While in past 18 to 20 months आपने काफ़ी बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्या टेक्नोलॉजी में खर्चा वर्चा आप लोग नहीं करते हैं, दैट यू स्टिल stay cost effective and competitive? We're always very prudent in spending. You are not just spending left, right, and center for things which don't matter much. तो हमने मिजान GPT लॉन्च की. We trained this AI model on over 2,000 documents. Okay. तो अब आप जाके जब इसमें चैट जीपीटी, ये जो मिजान जीपीटी है, मिजान जीपीटी पे if you ask any question, it goes through those 2,000 documents and picks up the best reply to your question. आप आगे जाके loans आपने apply करना है, तो you'll get instant approvals. All of these things are not, जिसमें अभी आप अगर कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको 15 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के आने में, ये सारी चीज इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएंगी. When it comes to technology, you have to hire the best. जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जो इनकम्बेंट बैंक्स हैं, हमें थोड़ा सा अपना एजिलिटी और टाइम टू मार्केट बेहतर करना है. Where do you see Mizan Bank in next 5 years? What is your vision? We know that Mizan is at the top when it comes to technology, volume, value, but what is your vision about next 5 years? So हमारा जो आइडिया है मिजान बैंक का, जो हमारा विजन है, that is to establish Islamic banking as a banking of first choice. And inshallah, going forward in years to come, we want to be guided by this vision statement, and we will bring Islamic banking to every single household of Pakistan. That's our whole idea of existence. And inshallah, iske liye whatever we need to do, we will do that. Be it the best of digital banking, be it providing the best world-class services through our branches, coming out with the best products. तो वो सारी चीज़ें हम ये करेंगे जो eventually will build confidence in the minds of our customers that Islamic banking is the best banking. They develop their trust in Islamic banking. और inshallah at the same time, the idea is to help the economy of Pakistan grow together with our growth. उस पे फोकस रहेगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो दो एक बड़े एजेंडाज हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर मिजान बैंक विल आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स. और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ बैंक, वी वांट टू रिमेन द फेवरेट बैंक, चाहे वो आपका जो है वो अर्बन सेगमेंट हो, रूरल सेगमेंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, फॉर एवरी काइंड of customer and every kind of business segment, we want to be their favorite bank, inshallah. That's great of you. शारिक मुबीन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे हमारे साथ शारिक मुबीन, जो कि मिज़ान बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं. उन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि पिछले 18-20 महीनों में जो मिज़ान बैंक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है, उसका मकसद क्या है, और जो बैंक गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो अपनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, टॉप रैंकिंग है, सिर्फ उसको मेंटेन करे, बल्कि उनका मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, रियासत की सबसे बड़ी कंसिड्रेशन है, वो जो कंसिड्रेशन है दैट इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट हैपन्स टू बी ऑन द टॉप. और उसके ज़िमन में, उसके सिलसिले में दे हैव अ व्यू, विजन एंड मिशन that every household got to have an Islamic service. Every individual Pakistani, whether in the rural or in the urban far-flung area, they have this vision to make them access the banking facility. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When we look at the Pakistani stock market, when we look at the Pakistani economy, a number of good news, a number of traction
factors, a number of triggers which are actually driving the economy and the stock market. One such trigger happens to be the resolution of the circular debt. And when you look at the current rally, you would find banks behind that. But now, since the curtain has been raised from the circular debt matter, it appears that SSGC, SNGP, PSO, OGDC, these stocks are going to now lead the rally. And when we look at the banks, banking sector, may you find only one fine star, and that happens to be the Mizan Banking. और पाकिस्तान के अंदर जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है दैट कम दिसंबर 2027 पाकिस्तान में सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग की, फाइनेंशियल सेक्टर की, फाइनेंशियल सिस्टम्स की, उन्हें रिबा फ्री होना है. तो फिर हमें इनफैक्ट एक ही बैंक है जो ऑन द टॉप नज़र आता है. ये जो बैंक है ये डिजिटलाइजेशन के ऊपर इसने काफ़ी एफर्ट किए. डिजिटाइजेशन इज़ पास्ट, and nowadays what we hear about Mizan on the street is their digital transformation, and the journey seems to be going very well. They are using AI effectively. Mizan का जो chatbot है recently launch हुआ है उसकी भी काफ़ी बाज़गश्त है, and people keep talking about the good things which are happening at Mizan Bank. So today we thought, why not to speak with the men behind these thoughts and the man who is implementing this digital transformation at Mizan Bank. He happens to be the Chief Digital Officer of the Mizan Bank, none else than Shariq Mubin. Shariq, welcome to the show and Assalamu alaikum. Ji, walaikum assalam, and thank you for the very nice introduction. वेलकम सर, वेलकम सर. ये बताएं कि ये जो डिजिटल विजन है आपका बुनियादी तौर पे ये क्या है, एंड हाउ इज़ योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी going? All right. So, देखिए, the core idea is that if you choose to do your banking with an Islamic bank, so it doesn't mean that you have to make any compromise. So, when it comes to digital banking, you should be able to get the best of digital banking, even when you come to any Islamic bank. And Mizan Bank being the largest and the biggest bank in Pakistan in Islamic banking, we want to be the best in digital banking as well. So that is the whole idea behind it. And now, as you already know, that State Bank has recently issued uh, licenses for the fully digital banks, and they have issued 5 licenses. Right. So when these banks will come around, we want to compete with these banks just like any other digital bank. वहाँ पर आपको जो सर्विसेज मिल सकती हैं वही सारी सर्विसेज या उससे बेहतर हम inshallah will try and compete with these banks to give better services to our customers. Even when all of this is happening in industry, they should not feel left behind. ज़बरदस्त सर. ये जो वर्ड ऑन द स्ट्रीट है डिजिटल एक्सीलेंस, और पिछले 18 महीनों में सब लोग कोट करते हैं नंबर्स के कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस, ब्रांच पे जो लोग जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं वर्सेस द ट्रांजैक्शंस which are now happening electronically, digitally, और इसमें Mizan is taking the lead. So what are the things which are behind, because Temenos or banking procedures, SBP compliance सभी के साथ हैं. What is it that makes you ahead of all of the other your peers? Yeah, but you're right कि Mizan Bank का जो digital conversion है that's been very very good. हमारे यहाँ just to share some numbers, जितनी transactions होती हैं overall बैंक के अंदर उन transactions का 94% of those transactions happen digitally, and only 6% of these transactions happen at the branch counters. और अगर आप फंड्स ट्रांसफर की बात करें, फंड्स ट्रांसफर का मतलब ये है कि इफ आई हैव टू गिव यू मनी और आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, Right. you can write a check, or you can give me a pay order and I can write a check or give you a pay order, etc., which was the conventional way of making the payment. But today you can also transfer funds online digitally by using internet banking or mobile app. So अगर आप ये सारे फंड्स ट्रांसफर की ट्रांजैक्शंस को एड अप करें, तो जो ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रही हैं वो 97% ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग डिजिटली, एंड ओनली 3% ऑफ these transfers are happening through the branch counters, जिसमें checks और pay orders और वो सारे instruments शामिल हैं. तो the digital shift has been really really
fantastic over the last couple of years. Especially, it picked up after COVID, but that's been the industry trend. But Mizan, of course, has been growing very, very rapidly on the digital conversion side. आपने इसका रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, तो मेरे ख़्याल से 2-3 बड़े अहम रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि वी हैव ऑलवेज़ केप्ट आवर डिजिटल बैंकिंग वेरी सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़। राइट, एक तो ये हमारा हमेशा से दिस हैज़ बीन एन एरिया ऑफ आवर फोकस एंड आवर यूनिक स्ट्रेंथ एज़ वेल। राइट, Uh, Number two, awareness that we have worked very closely with our customers to bring them on board on the digital channels. Our branches introduce our mobile app to our customers, and then once they start using the app, they never want to come back to branch. Coming to branch is an hassle. Taking out the car, going to the branch, parking your car, walking inside the branch, waiting in the queue. So it's far more easier for you to just simply pick up the phone and transfer digitally. तो इसको फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक इस प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशनलाइज़ करते हैं, इसको फिर आप फॉलो थ्रू करते हैं ब्रांचेस के साथ, कस्टमर के साथ, अवेयरनेस पे काम करते हैं, एंड देन यू ऑलवेज़ मेक श्योर दैट द डिजिटल एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, एंड you get the best uptime, you get the successful transactions whenever you're trying to do any transfer or trying to make a bill payment. So वो सारी चीज़ें, then if something goes wrong, how the bank then supports the customer in fixing the issue. So that is also, and then that builds up the trust on digital channel, and hence you see the growth in digital transactions. So ज़बरदस्त। yeah, और इसके अलावा just to add to this thing, जो आपका जो डिजिटल का जो सर्विसेज हैं, we need to make sure that all of those things that customers want to do are available on digital channels. और आज अगर आप बिल पेमेंट्स ही की बात कर लें, तो देयर आर ओवर 3000 बिल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू थ्रू आवर ऐप। दैट्स ग्रेट। और और उसमें चाहे आपने कोई चालान पे करना है, आपने स्कूल फीस फी पे। वाउचर पे करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, देयर आर ओवर 3000 सच ऑप्शंस अवेलेबल, एंड देन ऑफ कोर्स कस्टमर जब इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता दे गेट यूज्ड टू इट, एंड देन दे नेवर गो बैक। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यूज़ ऑफ बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एक चीज़ और है, वी हैव डन आवर होमवर्क जो कि मार्केट से हमें पता चली है कि यू ऑल्सो हैपन टू बी वेरी वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। वाइल इन पास 18 to 20 मंथ्स आपने काफ़ी बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्या टेक्नोलॉजी में खर्चा वर्चा आप लोग नहीं करते हैं दैट यू स्टिल स्टे कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड competitive? Sir, in terms of cost to income ratio, obviously we're very conscious about how we spend money, and we don't we're always very prudent in spending. और जहाँ पर टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, you need to pick up the right solutions. You need to scale them in a proper way, and of course, it's about how effectively you are utilizing your systems which are available to you, and not just spending, left, right, and center for things which don't matter much. तो हमारा जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है विच आर वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी एसेंशियल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। तो वहां पर हम लोग अच्छा खासा वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट ऑब्वियसली there's always this thing कि what's the best you can get out of your technology investments, and तो वो फिर उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम इसको टू द बेस्ट जो है वो यूज करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। शारिक मुबीन साहब, ये वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़रूर बात करें और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि हाउ डज़ योर न्यू चैटबॉट वर्क्स। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शारिक मुबीन से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिज़ान ने एआई का इस्तेमाल किया है इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो उनका नया एआई बेस्ड चैटबॉट है वो क्या है, एंड गोइंग फॉरवर्ड what type of new digital services, what type of digital enhancements do they plan to bring in.
So Sharik Mubin, over to you. राइट, आपने ज़िक्र किया मिज़ान बैंक का, जो हमने रिसेंटली एक चैटबॉट लॉन्च किया है। लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था। इट इज़ कॉल्ड मिज़ान जीपीटी। So ever since this chat GPT thing came around, we've been wondering how to use such a powerful tool in a corporate environment. तो आपने देखा ही होगा, जब आप पर्सनली इसे यूज़ करते हैं तो इट्स अमेजिंग। आई मीन, जिस तरह की हम पहले सर्च किया करते थे और अब जो फैसिलिटी अवेलेबल है थ्रू एआई, दैट दैट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो हम पहले, आज से 3-4 साल पहले, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल होगी कभी। और अब जबकि ये चीज़ अवेलेबल है, तो वी थॉट कि इसको हम इस तरह से यूज़ करें कि हम अपने कस्टमर्स को भी इसका बेनिफिट पास ऑन करें, और बैंक के अंदर भी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, उसमें हम इस टेक्नोलॉजी को टू द फुलेस्ट हम इसको यूज़ करें। तो हमने मिज़ान जीपीटी लॉन्च किया लास्ट ईयर, एंड वी ट्रेन्ड दिस एआई मॉडल ऑन ओवर 2000 डॉक्यूमेंट्स। Okay. तो अब आप जाके जब इसमें चैट जीपीटी, ये जो मिज़ान जीपीटी है, मिज़ान जीपीटी पे इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन, इट गोज़ थ्रू दोज़ 2000 डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्स अप द बेस्ट Reply. रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और उसके अलावा फिर हमने इसको इंटरनली स्टाफ के लिए भी अवेलेबल किया है, जहाँ पे स्टाफ को बहुत सारे चीज़ें समझनी होती हैं, प्रोसेसेस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, एचआर की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ आपकी कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पहले उनको किसी को फ़ोन करना पड़ता था, किसी से पूछना पड़ता था, या डॉक्यूमेंट्स में जाके सर्च करना पड़ता था। पोर्टल्स तो हमारे पास पहले भी थे, जहाँ पर जाके आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बट नाउ दे सिंपली कैन go to Mizan GPT and ask the question in English, Urdu, whatever way they communicate, और उनको वो एक रेलेवेंट और एक प्रॉपर आंसर वहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो हो गया जो आपका कन्वर्सेशनल यूज़ है ऑफ एआई, Yeah. जेन एआई। तो दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। लेकिन Okay. जब आप इसको आगे लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर फिर आप जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप पहले कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं कर सकते थे। Okay. बिकॉज़ इन अ लॉट ऑफ, जी, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग? No, no, please go ahead. जी, जी, श्योर। तो in a lot of processes, you see that there is there is some mechanical thing that you need to do on a routine basis, and there are some steps in that process which require human judgment or discretion. Okay. तो हम जहाँ पर ह्यूमन जजमेंट वाली चीज़ आती थी, वहाँ पर आके आपका ऑटोमेशन का जो जर्नी था वो ब्रेक हो जाता था। और अब अलबत्ता हम एक पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जहाँ पर एक जो आपका मैकेनिकल और रूटीन काम हो रहा है, वो आप आरपीएस के थ्रू, जो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का एक तरीका-कार होता है, जिस पे आप एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका ह्यूमन जजमेंट आता है, वहाँ पर फिर हम एआई को ट्रेन करते हैं। एक स्पेसिफिक मॉडल आपका ट्रेन हो जाता, वो मॉडल आपको जो ह्यूमन जजमेंट वाला पार्ट होता है, वो उसको सॉल्व करता है, उसको ऑटोमेट करता है, एंड देन यू कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द एंटायर प्रोसेस। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपका जो बैक ऑफिस का जितना भी जो जॉब्स हैं, वो आपकी स्पीड अप हो जाती हैं, एरर फ्री हो जाती हैं, और फ्रंट एंड के ऊपर जो कस्टमर को सर्विस मिलती है, वो फिर वो एक बेहतर सर्विस उसको मिलती है, फास्टर सर्विस मिलती है, एरर फ्री सर्विस मिलती है। तो Right. यूँ बैक ऑफिस की ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एआई delivers the best of the customer experience on the front end. Okay, okay, that's great. देखिए मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, बट जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है दैट वी हैव कम अक्रॉस दैट पीपल हैव एक्चुअली सेंट अस मैसेजेस, एंड दैट इज़ कि जो आपकी नई ऐप है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, वो बहुत ज़्यादा देर तक काइंड ऑफ ऐसे लोगों को फील होता है कि जैसे वो हैंग हो गया हो, बट ऐप चल रही होती है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें चैलेंजेस हैं। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? जी, बिल्कुल। जो हमारा जो इससे पहले जो ऐप थी, दैट ऐप एक्चुअली गॉट मैच्योर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 इयर्स, ओके। और उस पर अभी हमारा इंडस्ट्री लीडिंग वॉल्यूम्स हम प्रोसेस करते हैं। लेट मी टेल यू द वॉल्यूम्स दैट वी प्रोसेस थ्रू आवर मोबाइल ऐप एंड ओके। डिजिटल। जो मिज़ान बैंक की जो डिजिटल वॉल्यूम्स हैं, दे आर रफली इक्वल टू 24 ट्रिलियन रुपीस इन अ ईयर।
दैट्स वाओ! 24 ट्रिलियन रुपीस का मतलब ये है कि दिस इज रफली 20% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, एंड इट इज द बिगेस्ट थ्रूपुट दैट any bank does in Pakistan. It is bigger than some of those banks also which have been around for over 70, 80 years in Pakistan. So because इसके volumes है, इसके usage बहुत ज़्यादा है, तो अब हम जब नए प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें अभी शुरू में थोड़े से टीथिंग इश्यूज आ रहे हैं, जो कि हमें हमें ये लगता है कि शायद अगले एक आध महीने के अंदर ये चीज़ें सारी मच्योर हो जाएंगी, एंड देन यूल गेट द सेम सीमलेस, द सेम स्पीडी एक्सपीरियंस ऑन आवर न्यू ऐप एज वेल, जैसे आपको पुरानी ऐप के ऊपर वो एक्सपीरियंस मिलता था। और जो नई ऐप है, जस्ट टू ऐड ऑन, हुँ, हुँ। ये एक it is a digital platform. It is not just an app but a digital platform, and the idea is to continue to add services on this platform, which today are available only through branches, or or for which either our RM has to visit your office or you have to come to a branch. जो चीजें पहले सिर्फ फिजिकली हो सकती हैं, अब सारी उन सर्विसेज को भी हम डिजिटाइज कर रहे हैं, दे विल ऑल कम ऑन टू द मोबाइल ऐप। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इट इज कम अबाउट विच विद विद अ विजन दैट वी विल मेक इट इनटू अ कंप्लीट डिजिटल बैंक। तो अब वो जो ट्रांजिशन है, दैट ट्रांजिशन राइट नाउ इज़ इन थोड़ा-सा के अंदर आप समझ सकते हैं कि या शुरू में जो टीथिंग इश्यूज़ आते हैं, वी गोइंग थ्रू दैट फेज़, बट इट विल बी हुँ, वेरी सून, इट विल बी ओवर, एंड देन वी हैव वेरी एक्साइटिंग जर्नी अहेड ऑफ अस थ्रू दिस ऐप। quite understandable, but I would also like to lay a great emphasis that 99% of the mobile app is there because of the transfer of funds. ये पर्टिकुलर चीज़ अगर स्लो है तो आई थिंक इसको थोड़ा फास्ट पेस पे देखने की ज़रूरत है। श्योर। मूविंग फॉरवर्ड, when we say financial inclusion happens to be the biggest agenda of all the banks and the state of Pakistan and is also the State Bank of Pakistan, what do you have in your mind in terms of reaching out through the effective use of technology? और आपकी बात से मुझे समझ में आ गया कि जो टेक्नोलॉजी से भी शहरी इलाके हैं, प्रॉब्ली शायद एक वक्त आए कि उसमें शायद ब्रांच नेटवर्क पे इतना फोकस नहीं हो जितना जहाँ पे लोग डिजिटल सेवी नहीं हैं, और वहाँ पे भी लोगों को आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडे के थ्रू रीच आउट करें। यू हैव अ प्लान इन रीचिंग आउट टू मासेस। what are your thoughts on financial inclusion when it comes to Mizan Bank? सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर हम लोगों ने अभी अबाउट 3 years ago we launched the digital onboarding प्रोडक्ट। सो डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्या है कि ये भी एक मोबाइल ऐप है, जिस पे जाके आप घर में बैठे विद इन 5 minutes you can open up an account, Okay, and this app is available wherever the internet is available in Pakistan. okay, तो अगर आप किसी ऐसे छोटे से गांव में भी हैं जहां पर आपके पास एक अदद स्मार्टफोन है और एक आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, सो यू कैन ओपन अप मिज़ान बैंक अकाउंट। ऑल यू नीड टू डू इज टू verify your biometrics, and it's a very easy process. We take a picture of your finger, extract the biometrics, verify it against the NADRA biometrics data. Once that is verified, then the rest of the things are very easy, simple। आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये दो चार चीजें, एंड देन योर अकाउंट इज ओपन। तो आपने देखा होगा कि पहले जब जैज़ कैश और इजी पैसा ने पाकिस्तान में वॉलेट्स खोलना शुरू किए थे, सो दे हैव ओपनड अप अ लॉट ऑफ वॉलेट्स, लेकिन बैंक्स में अकाउंट खुलना मुश्किल होता था। yes, लेकिन अब जो है, बैंक्स भी बहुत आसानी से अकाउंट्स जो है वो खोल सकते हैं, बिकॉज डिजिटल ऑनबोर्डिंग का जो फ्रेमवर्क है वो बैंक्स के लिए भी अवेलेबल है। okay, तो उसमें हमारा माशाल्लाह वी हैव अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। टुडे वी हैव ओवर 700,000 accounts which have been opened digitally, and this is by the way among the commercial banks। I mean, अगर आप इजी पैसा और yeah, जैज़ कैश को हटा दें, so this is the biggest number of accounts that any bank has opened up, and अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी हमारा काफ़ी स्मूथली चलता भी है, और इसको आगे जाके हम इवन उर्दू में भी इसको हम लेकर आएँगे, ताकि आपका जो लोग जो इंग्लिश में जिनको अकाउंट खोलना मुश्किल लगता है, वो उर्दू में अपना अकाउंट आसानी से खोल सकें। और आज भी इसके अंदर 20% अकाउंट्स जो हैं वो वुमेन के अकाउंट्स हैं, और छोटे-छोटे शहरों से भी हैं। इसमें कोई 40% अकाउंट्स हमारे छोटे शहरों से खुले हुए हैं, 60% बड़े शहरों के अकाउंट्स हैं। right, एक्सक्यूज़ मी। और 40% अकाउंट्स हमारे छोटे शहरों से, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं
जहाँ मिज़ान बैंक की ब्रांच है ही नहीं। Right. और वहाँ से ये अकाउंट्स खुले हैं। तो दिस इज़ हेल्पिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन अ बिग वे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एग्रेसिव प्लान्स। वी विल कंटिन्यू टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट, मेक इट ईज़ियर, go out and reach smaller towns and cities and youth and women, and inshallah will participate fully in the in financial inclusion. That's great. That's great of you. Sharik, this is time for a short break. वक्फे के बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें what is the future of digital banking and Islamic finance. So नाज़रीन, don't go nowhere. Let's meet after a short break. Welcome back, नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड मीज़ान्स विजन एंड व्यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड डिजिटल बैंकिंग. सो शारिक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक? Well, I think the future is bright because banking एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का adoption is just as at par with any other bank globally. So, because the banking industry is very healthy in terms of profitability, and there is a lot of competition. Digital banks are coming up. So यहाँ पर I see a lot of good things happening. Inshallah, banks will adopt technology to the fullest. और आप देखेंगे कि आगे जाके एआई हो या ब्लॉकचेन हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी, एंड इवेंचुअली द प्रोडक्ट्स व्हिच विल कम आउट आर गोइंग टू सर्व आवर कस्टमर्स इन अ फार बेटर वे। आप आगे जाके लोन्स आपने अप्लाई करना है तो यू विल गेट इंस्टेंट अप्रूवल्स, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर नॉट, जिसमें अभी आप अगर कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको 15 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के आने में, ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएँगी। और आपके जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया तो आपको आज लेट्स से कि हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन। तो ये जो सारे अप्रूवल्स हैं, द काइंड ऑफ डेटा व्हिच इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल टू दीज़ बैंक्स एंड द AI based underwriting models which will be available to banks, I think all of this will become very, very quick. Industry will become very competitive, and customers eventually will get a lot of benefit of this healthy technology based competition between the banks. So going forward, you feel like going in a direction कि जिसमें technology and technology. So from where this huge investment is going to come, and to support this kind of idea, you require innovation और उसके लिए manpower. What are you doing for manpower transformation at Mizan Bank? Well, you see, you have to, when it comes to technology, you have to hire the best talent which is available. And Alhamdulillah, Pakistan ke andar we have extremely good IT talent, even though a lot of people are moving out of Pakistan as well because they're getting a lot of good opportunities. But even, even the ones who are available within Pakistan, you can build a good team with them. And तो यहाँ पर आप talent is one issue, of course, because तमाम banks जो हैं, they're running after good talent, but मिल जाता है talent भी आपके पास होता है in terms of investments. Banks को, जैसे मैंने आपको बताया कि these large banks, they have a lot of they have a strong financial muscle, and they can afford to bring in global innovations, global technologies in Pakistan. They can work with partners, they can work with the best of the suppliers in the world. एंड सो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हम ईज़िली हैंडल कर लेंगे। हमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जो इनकम्बेंट बैंक्स हैं, हमें थोड़ा-सा अपना एजिलिटी और टाइम टू मार्केट बेहतर करना है। और वरना जो है, आई थिंक टैलेंट इज़ आल्सो अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट टैलेंट। दैट एट टाइम्स इज़ अ स्ट्रगल, बट यू कैन फाइंड गुड पीपल, वो हो जाता है। फाइनेंशियल मसल मैंने आपको बताया कि बैंक से स्ट्रांग है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग दीज़ थिंग्स टुगेदर एंड डिलिवरिंग टू कस्टमर्स एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशंस। So one fine last question: where do you see Mizan Bank in next 5 years? What is your vision? We know that Mizan is at the top when it comes to technology, volume, value, but what is your vision about next 5 years, 5 to 10 years?
राइट सो हमारा जो आइडिया है मिज़ान बैंक का, जो हमारा विजन है, दैट इज़ टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज़ अ बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस. And inshallah, going forward in years to come, we want to be guided by this vision statement, and we will bring Islamic banking to every single household of Pakistan. That's our whole idea of existence. And inshallah, iske liye whatever we need to do, we will do that. Be it the best of digital banking, be it providing the best world-class services through our branches, uh, coming out with the best products. तो वो सारी चीज़ें हम ये करेंगे जो इवेंचुअली विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ आवर कस्टमर्स दैट इस्लामिक बैंकिंग इज द बेस्ट बैंकिंग. दे डेवलप देयर ट्रस्ट इन इस्लामिक बैंकिंग. और इंशाल्लाह एट द सेम टाइम द आइडिया इज टू हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रो टुगेदर विद आवर ग्रोथ. उस पे फोकस रहेगा जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो दो एक बड़े एजेंडाज हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर मिज़ान बैंक विल आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स. और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ बैंक, वी वांट टू रिमेन द फेवरेट बैंक ऑफ आवर कस्टमर्स एज वी गो फॉरवर्ड. चाहे वो आपका जो है वो अर्बन सेगमेंट हो, रूरल सेगमेंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, फॉर एवरी काइंड of customer and every kind of business segment, we want to be their favorite bank, inshallah. दैट्स ग्रेट ऑफ़ यू। शारिक मुबीन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे हमारे साथ शारिक मुबीन, जो कि मिज़ान बैंक के चीफ़ डिजिटल ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि पिछले 18-20 महीनों में जो मिज़ान बैंक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है, उसका मकसद क्या है, और जो बैंक गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो अपनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, टॉप रैंकिंग है, सिर्फ उसको मेंटेन करे, बल्कि उनका मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, रियासत की सबसे बड़ी कंसिड्रेशन है, वो जो कंसिड्रेशन है दैट इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट हैपन्स टू बी ऑन द टॉप। और उसके ज़िमन में, उसके सिलसिले में दे हैव अ व्यू, विजन एंड मिशन that every household got to have an Islamic service. Every individual Pakistani, whether in the rural or in the urban far-flung area, they have this vision to make them access the banking facility, make them access the Islamic finance, make them access the facility which is envisioned and enshrined by the very, very stakeholders, shareholders and owner of the bank. मैं बाय द वे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मिज़ान बैंक की आप EPS को देखें, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें, मार्केट आउटलुक को देखें, या मार्केट के किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट को देखें, उसके लिए मुश्किल होता है कि वो मिज़ान बैंक को नंबर 1 मिस करे। उसके लिए मुश्किल होता है कि वो रेकमेंडेड लिस्ट ऑफ पिक्स के अंदर मिज़ान की रैंकिंग को पहले से दूसरे पर लेकर जाए। All of this is happening because in past 18 and a half month, what Mizan has done is tremendous. Mizan की जो digital transformation है, उसने peer banks को परेशान किया है। जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं, जो नंबर्स हमें शारिक ने भी बताया कि वो ट्रिमेंडस ग्रोथ शो करते हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग की बात हो या जो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन वर्सेस डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसकी बात हो, मिज़ान surpasses all the record just because there happens to be some kind of silent transformation which is going on. इस तरह की बातचीत, तज्ज़िये और एनालिसिस को हम दिसंबर में भी आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। एंड जस्ट टू सी दैट गोइंग फॉरवर्ड कम 2027, मिज़ान के पूल के अंदर, इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर, इस्लामिक बैंकिंग के पूल के अंदर पाकिस्तान के सारे बैंक आके कम्पीट करने जा रहे हैं। मिज़ान उसके लिए कितना रेडी है, इस चीज़ पे हम बातचीत ज़रूर करेंगे सैयद आमिर अली से कम जनवरी 2026। नाज़रीन, वेट फॉर अस। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।